Okay, Shalom friends, good evening once again. Shalom friends, good evening once again. Dimple. Okay. शलोम सबको और परमेश्वर की उपस्थिति में आज इस शाम को हम आपका स्वागत करते हैं. I want to welcome you in the name of Yeshua, our Lord and Savior. और हम आपको यीशु के नाम में जो हमारा उद्धार करता और छुड़ाने वाला है उसके नाम में हम आपका स्वागत करते हैं. And in continuation to what we were studying last time from the book of Yaakov, और जो किताब हम याकूब की गए हफ्ते में जिस विषय में हम पढ़ रहे थे उसी में आज हम आगे बातों को देखेंगे. we were studying the first chapter of the book of Yaakov, and I think we ended it on verse 14. So we're going to continue from verse 15 onwards today. और हम जो है वो याकूब की पहली किताब में से पढ़ रहे थे और 14वें अध्याय तक हमने पहली किताब का 14 वचन तक हमने पढ़ा और आज जो है हम वो 15वां वचन से आगे जाएंगे. Okay, so just to recap, last week we studied about the perfection of God, his attributes, creation, and how he's created everything with a deficiency of himself. और गए सप्ताह जो हमने देखा यह हमने देखा कि परमेश्वर के कुछ बातों को हमने देखा, उसका जो चरित्र है, उसका जो स्वभाव है, उसने जो कार्य किया, जो उसने सारी सृष्टि की जो रचना की और उसने कैसे ये सृष्टि की रचना क्यों कुछ खामियों के साथ की. And that imperfection in creation demands us that we need to love and to cleave and to cling to God, to share and to derive joy and perfection of who he is. I'm so sorry. The network was paused in between. I'm so sorry. Could you please repeat it? Okay, so this imperfection inside of us, this deficiency inside of us, requires us to cleave to God, to hold on to him for his love and his perfection. तो ये जो हमने देखा कि ये जो परमेश्वर ने जिन खामियों को रखा है और जो परमेश्वर पूरी तरह से जो सारी चीजों में संपूर्णता में है, परिपूर्णता में है, इसके द्वारा हम जो है वो और परमेश्वर की और हम और परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़ सकते हैं उसके इस कार्य के द्वारा. There's a lot of noise, Dimple, from your side. Yeah, actually there is just a minute. Actually, when I'm getting inside, there is some network issue. Yeah, sorry. Okay, so we read also last time in verse 3, verse 2 and verse 3, which says, "My brethren, count it all joy when you fall into different kind of trials and tribulations or temptations." और गए सप्ताह हमने देखा कि तीसरे और चौथे वचन में कि जहाँ पे लिखा है कि भाई जब तुम किसी भी नाना प्रकार की परीक्षाओं में जब तुम आते हो तब उसको पूरे आनंद की बात समझो. Because these trials and these tribulations and these temptations are there in place for us to be able to come closer to God, to cleave to him, and to derive pleasure and joy from his presence. और ये जो भी परीक्षाएं हम पे आती है और जो भी सताओं से हम गुजरते हैं उसको हमें इसलिए आनंद की बात समझनी है क्योंकि इसके द्वारा हम जो है वो परमेश्वर के और करीब जो है वो जा पाते हैं. उसकी जो परमेश्वर की जो कार्य की समझ है उसमें हम परमेश्वर से एक और करीबी रिश्ते से जुड़ सकते हैं इस सताओं के कारण. Wonderful. And then this, by going through these temptations and these tribulations, we get patience. And this patience, once it is complete, then we will be made perfect and whole and nothing wanting in our being. और जब हम इस परीक्षा से इस सताव से जब हम निकलते हैं और जब इन
चीज़ों से हम पार होकर बाहर आते हैं, तब वो हमारे अंदर जो है वो एक धैर्य लाता है और हमारे अंदर एक परिपूर्णता लाता है और परमेश्वर की उपस्थिति में जो है वो हमें पूरी तरह से लेकर आता है और वो हमारे अंदर इन बातों का बदलाव आता है इस परीक्षा में से जब हम उभर कर आते हैं। And moreover, we've read and we've understood that the Gospel of Yaakov or James was written by Yaakov to his Jewish brethren in the diaspora in the known world, known ancient world. और हमने ये देखा कि याकूब ने जो है वो इन बातों को अपने यहूदी लोगों के यहूदी भाई-बहनों के लिए इन बातों को लिखा है जो पूरे संसार में जो है जो वो अपना स्थान बना चुके हैं, जो पूरे संसार में अलग-अलग स्थानों पर जाकर जहाँ पे यहूदी लोग बस गए हैं, याकूब ने ये बातें उन यहूदी भाई-बहनों के लिए लिखी है। So he is bringing them to remembrance the basics and the foundations of the Torah and foundations of Judaism to their understanding, bringing it into remembrance. और ये याकूब ने जो है ये इन बातों को याद दिलाने के रूप में यहूदी लोगों को इन बातों को समझने और इन बातों को याद दिलाने की स्मरण करने के रूप में इन बातों को लिखा है। Now, in verse 13, it says something really amazing. It says, "Let no man say when he is tempted that I am tempted of God. For God cannot be tempted with evil, neither does he tempt any man." और इसमें जब हम 13 वचन. 13 वचन देखते हैं तो वचन कहता है, जब किसी की परीक्षा हो तो यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर से और से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वो किसी की परीक्षा आप करता है। So now, if you look at this verse very carefully, it kind of makes us ask a question as to, if God is not involved in all the troubles and trials that we're going through, then who really is? और एक सवाल इस वचन से हमारे मन में आता है कि अगर परमेश्वर अगर शामिल नहीं है हमारी परीक्षा और हमारे सताव के समय में, तो वास्तविकता में कौन है जो ये बातों को लाता है? He answers us in verse 14, which says, "But every man is tempted when he's drawn away of his own lust and enticed." Verse पर 14. इसका उत्तर जो है वो 14 वचन में लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। So therefore, this deficiency that you and me are created in, this deficiency gives us a lot of trouble. And this trouble comes out in the form of trials and temptations and problems of dealing with life. और इसीलिए ये जो खामी जो इस संसार में रखी गई है, ये जो खामियों के द्वारा जो है हम इस परीक्षा और इस सताव में गिरते हैं, जिस प्रकार हम उसका चुनाव करते हैं, जिस प्रकार हम निर्णय लेते हैं इस परीक्षा के समय में, वो जो है वो हमें इन बातों को हमारे जीवन में लाती है या उपजाती है। Now, when a person is unaware of the impurities and the evil around him, he will by default nature indulge in the impurities and in sin. और जब कोई व्यक्ति जो है जब उसको पता ही नहीं होता है या तो वो उन बातों से जब अनजान रहता है जो अशुद्ध बातें हैं जो बातें सही नहीं है, जब उसको उन बातों का जो है वो प्रभाव पता ही नहीं रहता है, तो वो आप अपने आप ही उसके ही स्वभाव से वो इन बातों के जो है वो अंदर चला जाता है और इसी बातों को वो अपना लेता है। We have to ask ourselves a question. When God created Adam and Eve and he put them in the garden, were they so perfect that sin had no control over them?
until the time they sinned, and then sin took over. और जब हम ये बात को देखते हैं, जब परमेश्वर ने इस इस सृष्टि की जब रचना की और आदम और हवा को जब परमेश्वर ने बनाया, तो तब एक सवाल है कि क्या हवा और आदम इस पाप में क्या इतना इस पाप का इनके ऊपर इतना ज्यादा जो है वो काबू था कि वो इस पाप के ऊपर जो है वो विजय नहीं प्राप्त कर सकते थे? See, before they sinned, before the incident of the sin, Eve was enticed. She saw, and then she processed, saying that this fruit is good to the eyes and able to give and to make us wise. So therefore, even in the state of that perfection, there was the enticement and the temptation. और हम देखते हैं कि हवा ने ये पाप करने से पहले वो पूरी तरह से इस बात को जो है वो पूरी तरह से एक संपूर्णता में थी, फिर भी वो इस बात को देखती, उसने देखा कि ये फल जो है, ये फल देखने में लुभावना है और इस फल खाने से मेरे अंदर जो है वो बुद्धि आ जाएगी। तो वो So जो therefore, है सॉरी, तो वो जो है उसने इस जो पाप को है उसने अपनाया। so therefore we have to ask a question again. Was the concept and system of temptation and this thing and the ability to be enticed already engrafted into Adam and Eve even before the sin? और इसलिए ये जो बातें हैं, जब ये अभिलाषा जो है वो ये अभिलाषा क्या पहले से जो है वो एक बनी हुई अभिलाषा थी, एक अंदर एक रूप ली हुई उनके शरीर की ये एक अभिलाषा थी, ये पाप में पड़ने से पहले ही क्या उनके अंदर थी? Because although they were in a state of perfection, but yet Eve got enticed and Adam got enticed and Adam partook of that sin. So therefore we must conclude that they were not innocent to what you and me understood. और इसलिए हम ये बात को समझते हैं कि वो लोग पूरी तरह से शुद्धता में थे, परिपूर्णता में थे, पर फिर भी जो है उनसे ये पाप हुआ, ये लोग जो है वो इस अभिलाषा में गिरे, और ये पाप जो उनसे हुआ, ये बात हमें समझाती है कि ये पूरी तरह से जो है वो उनके अंदर भोलापन नहीं है। They understood because God told them. He told them about the tree of good and evil, and he told them that if you eat of it, you will die, and for them not to take part. So they understood, they were of great understanding of what everything was. They were not innocent. और यहाँ पे ये बात वो लोग इस बात में जो है वो भोले नहीं थे, ऐसा नहीं था कि उनको नहीं पता था, उनके अंदर ये बात समझ थी कि परमेश्वर ने इस फल को खाने के लिए जो है वो मना किया है, ना बोला गया है कि इस फल को जो है वो नहीं खाना है, पहले से ही इनको वो बात की समझ थी। So let me propose something very dynamic to you all today. This creation that was made deficient, made much more lesser in light and in goodness to God. और आज हम एक बहुत ही एक धमाकेदार एक बात जो है वो उस रूप में एक बात लाना चाहते हैं कि ये जो परमेश्वर की जो रचना है, एक घटी के साथ जो परमेश्वर ने रचना की है, और ये इसमें जो परिपूर्णता नहीं है। And he placed Adam and Eve there, and he gave Adam and Eve the choice to choose whether they want to be where they are or whether they want to descend to this lower world that is deficient, so that they can be able to rectify this world and bring it back to God.
और यहाँ पे परमेश्वर ने जो है वो आदम और हवा के आगे चुनाव रखा था कि वो चुनाव करे, या तो उस फल को ना खा के परमेश्वर की जो रचना, जो सृष्टि है उसमें बने रहे, या तो एक चुनाव करे इस फल को लेकर जो परमेश्वर ने जो इस सृष्टि की जो एक कमी के साथ एक रचना रची है उसके अंदर आए, सृष्टि उस रचना के अंदर आकर जो है वो परमेश्वर की नाम को जो है वो संसार में आकर बढ़ाए। So all that is deficient in creation, Adam and Eve would be able to rectify and take it back into glory to God. That was the role of Adam in all of creation. और ये सारी कार्य इसीलिए हुए कि ये एक कार्य था आदम के द्वारा कि वो ऐसा चुनाव करे कि उस फल को खाए और ये इस संसार की जो कमी घटी है उसके अंदर भागी बने, और ये फिर से संसार को जो है उठाकर परमेश्वर की महिमा के लिए वो इन बातों को उठाए। So God has created Adam and Eve and you and me with a thing called an inclination either for good or for evil. और ये सारी बातें जो है वो परमेश्वर ने इस घड़ी के साथ बनाई है ताकि हम इन बातों के जो है वो एक संगति में आए कि हम जो है वो सही अच्छे का चुनाव हो रहा है या बुरे का चुनाव कर रहे हैं। So the evil inclination is called the Yetzer Hara, and the good inclination inside of us is called the Yetzer HaTov. It means the formation of good or the formation of evil. और दो ही प्रकार का जो है वो हमारे मन से बातें जो है वो उत्पन्न होती है, या तो एक बात होती है बुरी या एक बात होती है अच्छी। So therefore, if we continue indulging in the evil inclination, we will remain in this world that is unrectified. और अगर हमारा चुनाव, अगर हमारी जो संगति है या हम बुरी चीजों से जुड़े हुए हैं और बुरी बातों से जुड़े हुए हैं, तो हम उसी संसार के अंदर रहेंगे जो एक घटी के अंदर है। But if we choose to indulge in the Yetzer HaTov, in the good inclination, we will be able to rectify not only ourselves, our surroundings, and the world will be rectified and taken into glory back to God the Father. और अगर हम जो है अच्छे का चुनाव करते हैं तो ना ही सिर्फ हम हमारे अंदर सुधार को ला पाते हैं, बल्कि हम हमारे आजू बाजू के लोगों के अंदर भी सुधार को ला पाते हैं, और हमारे आजू बाजू के कार्य हम सुधार कर ये परमेश्वर की महिमा के लिए हम लेकर जा सकते हैं। So for a plan of God, He created Adam and Eve with this inclination inside of them and left them to choose what kind of inclination they would move towards, whether they want to do good or do bad. और परमेश्वर ने ही इन बातों को जो है वो रखा था आदम और हवा के लिए कि उनके अंदर ये बातें डाली गई थी, और चुनाव उनके ऊपर था कि वो जो है वो किस रीति में चुनाव करते हैं, अच्छे का चुनाव करते हैं या बुरी बात का चुनाव करते हैं। So I can propose and I can think, it's just my thoughts would tell me that God knew that creation was deficient and creation need to be brought back into glory. Therefore, He put this inclination in Adam and Eve that they would choose the evil inclination, they would go down with the deficiency, and they would be able to work their way up and to rectify the deficient areas of creation and bring them back into glory to God. This was the role of Adam. और अगर हम ये पूरी जो है वो परमेश्वर की मकसद को अगर हम समझने की कोशिश करें, तो परमेश्वर ने जो है वो इस संसार को एक कमी के साथ जो है उसकी रचना की, एक घटी के साथ रचना की, और उसमें परमेश्वर ने आदम और हवा को जो है वो एक चुनाव दिया, जहाँ पे आदम ने ये चुनाव किया, एक गलत चीज का चुनाव किया, ताकि वो इस संसार में जो है वो नीचे उतरे, नीचे
आए और फिर इसके द्वारा वो चीज़ों को जो है वो वापस परमेश्वर ये घटी को वापस से जो है वो सुधार कर अ, इन बातों को परमेश्वर की महिमा के लिए उठाए जाए, ये जो है वो कार्य आदम का था। So, all throughout the history of humanity and in the Bible and in the scriptures, we see that man was not able to rectify this world, and therefore, the ultimate result of that choice was death. और अगर हम पूरी तरह से इतिहास में देखें और सारी बातों को अगर हम पूरी तरह से समझे तो मनुष्य के अंदर जो है वो इस बातों को जो है वो इन बातों को चुनाव को जो है इन बातों को समझ नहीं पाया और इसी एक कारण है जो वो मृत्यु की ओर गया। But see the goodness and graciousness and love of God, that even with this choice of rectifying this world and knowing that humanity is going to die, God still made a provision through his son Yeshua that the world would be rectified back to him. और हम अगर परमेश्वर की भलाई को अगर देखें तो परमेश्वर ने इसके ऊपर भी भलाई रखी कि जहाँ पे चुनाव गलत हुआ, जहाँ पे गलत बात का चुनाव होकर मनुष्य ने जो है वो मृत्यु को देखा, पर परमेश्वर ने इन बातों के ऊपर भी सुधार लाने के लिए इस संसार में जो है इन बातों के ऊपर फिर से शुद्धिकरण सुधार लाने के लिए उसने अपने एक लौते बेटे यीशु का जो है वो बलिदान दे दिया। So the great plan of God, we're looking at a much bigger picture than the small picture we keep understanding all the time. We're looking at a much bigger picture now. और अब जो है हम परमेश्वर की जो योजनाएं हैं और हम जो है अब एक बड़े चित्र को देखेंगे, ना कि एक छोटे से छेद में से एक छोटे चित्र को देखकर नहीं बैठेंगे, अब हम परमेश्वर के एक बड़े चित्र को देखेंगे। So therefore, when we're reading verse 13, 14, and 15, it says, Yaakov says, God does not tempt, but every man is tempted when he's enticed, when he gives into this evil inclination inside of him, and he's drawn away with his lust and he's enticed, and therefore he indulges in the evil inclination inside of him. और इसीलिए हम ये 13, 14 और 15 वचन में ये बातों को समझते हैं कि परमेश्वर जो है वो किसी भी रीति से जो है वो मनुष्य को किसी की परीक्षा में नहीं डालता या कोई सताव में नहीं डालता है, पर मनुष्य खुद ही अपने आप ही जो है जब बातों का चुनाव करता है, जब उसके ऊपर के निर्णय को जब वो खुद निर्णय करता है तो वो निर्णय के द्वारा ही वो इस सत्ता और इस परीक्षा में गिरता है। Then verse 15 says, when this enticement has conceived, this lust is conceived, it brings forth sin, and sin, when it is complete and whole, it brings forth death. Read verse 15. 15 वचन कहता है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। So this sin, this lust, this enticing, this evil inclination was all created for a specific purpose by God and gave man the choice to either indulge in it or not to indulge in it, only for one reason, for the deficiency of creation to be rectified and brought back to God again. Praise God for this. और परमेश्वर की जो योजना थी, जो पाप को लाने की या जो पाप को जो जन्म देने की, वो इसीलिए थी कि मनुष्य उसके ऊपर किस प्रकार का चुनाव करता है और मनुष्य की अभिलाषा किस चीज में जाती है, वो अच्छे को लेता है या बुरे को लेता है। और उसी के द्वारा जब मनुष्य कार्य करता है तो इस घटी को कैसे फिर ये संसार की जो कमी घटी जो परमेश्वर ने रखी है, कैसे मनुष्य उस चीज को सुधार लाकर वापस परमेश्वर की महिमा के लिए उठाए, यही परमेश्वर की जो है वो योजना है। So I can look at this as a terrible story of humanity, or I can look at it as a grand picture that God is doing with humanity so that humans will be able to rectify creation.
So, but I want to talk to you today about this evil inclination, which the Bible keeps stressing about all the time. और हम जो है या तो एक मानवता की एक बहुत ही बुरे तरफ एक या तो हम बहुत ही बुरा चित्र जो है वो मानवता का देख सकते हैं जो पूरी तरह से जो एक पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, या तो हम उस चित्र को देख सकते हैं कि जहाँ पे इसमें परमेश्वर ने जो है वो बहुत बड़े रूप में जो है वो जिन बातों का जो मकसद परमेश्वर ने रखा है उन बातों को हम उस रूप को हम देख सकते हैं। और हम जो है उस बात पे बात करेंगे जो एक बुरे चुनाव की या बुरी बातों की जिसपे पवित्र शास्त्र जो है वो बहुत जगह जो है वो बात करती है। Therefore, Yaakov is reminding his Jewish brothers about this and telling them, listen, see, look at the bigger picture. And thank God that you're going through all these trials and tribulations. It's only for the glory of God. और इसलिए याकूब ने जो है ये बातें अपने यहूदी भाई बहनों से कही लिखी थी ताकि वो चाहता है कि वो लोग इस बड़े परमेश्वर के इस बड़े चित्र को देखे, क्योंकि परमेश्वर ये बातों को, परीक्षाओं को और सताओं को इसलिए ला रहा है ताकि इसमें परमेश्वर की जो है वो महिमा उठे। Now read verse 16 and 17. और 16 वचन कहता है, मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। So he's saying that every good gift comes from the Father of lights or from God Himself. But before God can share this with you, He has to try and test you and He has to confirm your commitment to Him first. God is going to qualify you. और यहाँ पे जैसे वचन कहता है कि परमेश्वर जो है वो हमें ज्योति से आशीष कर सकता है, ज्योतियों के पिता से हमारे ऊपर जो है वो आशीष, ज्योति की आशीष दे सकता है। पर उसके पहले परमेश्वर जो है वो हमें ऐसे समय से निकालेगा, ऐसी परीक्षा में से निकालेगा जहाँ पे पहले वो हमारा रिश्ता जो परमेश्वर के साथ जो है, जो हमारी जो चाल चलन है, पहले उसमें से वो हमें परखेगा। So He created a deficiency. Then with His grace and His love, He's filling that deficiency with His perfection and He's bringing you back to Him. This is the love of God. और परमेश्वर ने जो है इस घटी की इस संसार में इस घटी को रखा, इस कमी को रखा ताकि उसके अनुग्रह और उसके सामर्थ्य के द्वारा और जो उसकी भलाई मनुष्य जाति के ऊपर है वो वापस से उस महिमा को अपने पास वो लेकर आ पाए। Wonderful. Now, in verse 18 it says, of His own will, He brought us forth with the word of truth, that we should be a kind of first fruits for His creatures. Who is He talking about? He's talking about the Jewish people, my friends. और यहाँ पे 18 वचन कहता है, उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। और ये जो फल की वो बात कर रहा है, याकूब जो बात कर रहा है वो अपने यहूदियों भाई बहनों के लिए कर रहा है। Because they were chosen by God to be the first people to rectify this world by themselves. क्योंकि ये जो लोग हैं वो पहले चुने हुए लोग हैं जो पहले अपनी ओर से अपनी समझ से इस संसार के जो है वो सुधारेगा और परमेश्वर की महिमा के लिए उठाएंगे। But when God the Father saw that they were constantly failing and were not able to rectify this world, He sent a Son to do it for them. और परमेश्वर ने देखा कि ये लोग जो है वो बार-बार जो है वो असफल हो रहे हैं इस कार्य को करने के लिए, बार-बार उनकी असफलताएं देखकर जो इस संसार को जो है वो फिर से सुधारने की जो कोशिश है उसमें असफलता को देखकर परमेश्वर ने एक निर्णय लिया अपने पुत्र यीशु को देने का। And through
Yeshua, not only the Jewish people are rectified, but also you and me from the nations through Jesus now are rectified in the great plan of God. How beautiful, how wonderful this is. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह के आने के द्वारा सिर्फ यहूदी लोगों के ही अंदर जो है वो एक प्रकार का सुधार नहीं आया, बल्कि संसार में सभी लोगों के ऊपर जो है वो एक सुधार आया। यीशु जब आया तब पूरे संसार के ऊपर जो है वो सुधार को लेकर आया, और ये बहुत ही भली बात है। Read verse 19 and verse 20. अब 19वां वचन कहता है, मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जानते हो, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा हो और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। Why is he saying this? He's saying because if you do not understand these basic principles, if you do not understand the mercy and the kindness of God, he says, be swift to hear, slow to speak, and slow to get angry, because do not do things in ignorance of the great kindness and plan of God. और ये बातें क्योंकि ये हमारी समझदारी के लिए है कि हमें जो है वो उस दया को जो है वो उसका अनुग्रह को जो है वो हमें समझना है, ना कि बहुत जल्द जो है वो हमें क्रोधित नहीं होना है, बल्कि हमें धैर्य से उस बातों को जो है वो सुनना है, और बोलने में जो है वो हमें धीमा होना है। Because the human nature and the lust of the human nature and the unrighteousness of human nature has no place in the Tzidkat Elohim, in the righteousness of God. It's two different attributes altogether. क्योंकि इसका कारण यही है कि मनुष्य का जो स्वभाव है और उसकी जो लालसा है और उसका जो बातें हैं, वो बातों से जो है वो नहीं जुड़ सकता है परमेश्वर की धार्मिकता के साथ, क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता एक बहुत ही अलग बात है, और मनुष्य का ये जो स्वभाव जो शरीर में मनुष्य चल रहा है वो एक बहुत अलग बात है। Now read verses 21 and 22. इसलिए सारी मलिनता और वैरभाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। So he's saying something very fundamental, very, very important here right now. Okay, what is he saying? He's saying that keep away, lay aside all uncleanness and frivolity and uselessness, and receive with humbleness the word of God. He's saying get back to the word of God, which is able to save your souls. और ये वचन ये समझाता है कि हमें जो है वो सारी अशुद्ध बातों को, गलत लालसाओं को, हर एक गलत चुनाव को, हर एक गलत चीजों को जो है वो हमें दूर करना है, अपने आप से जो है वो अलग करना है, और परमेश्वर की जो बातें हैं, परमेश्वर के जो वचन है और परमेश्वर की धार्मिकता में जो है वो हमें उससे जुड़ना है और उसमें हमें आगे बढ़ना है। But be ye doers of the word. That means you got to internalize what you are studying. You got to internalize all that you are learning, and you got to put it into practice by faith. If you do not put it into practice, then you're only hearers and not implementers of the commandments of God. और ये सारे वचन जो है हमें सुनकर जो है उनको कार्य में लाने वाला बनना है, इसको हमें कार्य में लाना है, ना कि सिर्फ सुनकर बैठना है, क्योंकि सिर्फ जब हम कार्य में नहीं लाएंगे तो सिर्फ हम एक सुनने वाले बनकर रह जाएंगे। And when you do not do this, you are not in God's plan to rectify yourself, rectify the people around you, and to rectify this deficient world, and
and go back to God again. You're not in God's plan. और अगर आप जो है वो वचन को कार्य में लाने वाले नहीं बनोगे, तो आप जो है वो परमेश्वर की जो योजना है, उस योजना में भागी भी नहीं बन सकते हो। परमेश्वर की जो योजना है अपने आप को सुधारने की और अपने आजू-बाजू के लोगों को में सुधार लाने की, इस पृथ्वी पे सुधार लाने की और उसकी महिमा में इस धरती को वापस से परमेश्वर की महिमा में लेकर जाने की योजना में हम परमेश्वर की भागी नहीं बन पाएँगे। Now read verses 23 and 24. और 23वां वचन कहता है, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो, तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपने स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। If you don't know yourself, if you are looking at yourself in the mirror and saying, "This is who I am, and I'm not more than this," then you are sadly mistaken, because God has created you a lot more than who you are. You don't realize it. और ये तब होता है जब हम जो है वो अपने आप को जानते नहीं हैं और हमें लगता है कि हम ऐसे ही हैं। पर परमेश्वर ने जो है हमें कोई साधारण नहीं बनाया, परमेश्वर ने हमें साधारण से भी कहीं अधिक चीज़ों से बातों से जो है वो आशीष किया है। पर हमें ये बात नहीं समझ हम जो है अपने आप को कुछ नहीं समझेंगे अगर हम परमेश्वर की बात को नहीं समझ पाएँगे। What we are learning from this is that our understanding of faith and life in God, in Yeshua, should not be selfish about myself. It is about the whole. It is about the others. It's about the rectification of everything, not only myself. This is what I'm trying to explain to you. और हम इस बातों को सिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे हम जो है वो एक मनुष्य होने के द्वारा जो है हम एक स्वार्थी नहीं बन सकते। सारी चीजें अपनेपन के लिए या खुद के लिए नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं तो ये बातें हमसे जुड़े हुए लोगों के लिए है और पूरे संसार के लिए है कि जो सुधार है ये पूरे संसार के सुधार के लिए है। The plan and salvation of God is not for a personal level altogether. It is a corporate level for everybody together. और जो परमेश्वर की जो योजना है उद्धार देने की इस धरती के लोगों को, वो किसी एक व्यक्ति के लिए ही लागू नहीं होती है। ये जो है वो हम सभी के लिए परमेश्वर की उद्धार की जो योजना है वो लागू होती है। You, me, we all together become whole, and together we will become the body of Christ. It is for us together. It's not only me. I have to look outside of me. और आप और हम सभी मिलकर हम सब एक होकर जो है वो परमेश्वर की एक शरीर बन सकते हैं। यहाँ पे किसी एक व्यक्ति के द्वारा या सिर्फ अपने द्वारा ये कार्य जो है वो मुमकिन नहीं हो सकता। We've always been taught about approaching God for yourself. And that's not a bad thing for your personal rectification. But God is not interested only about yourself. He's interested about you becoming whole by you becoming part of the wholeness around you and rectifying everything around you. और हमें ये सिखाया जाता है कि हमें जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है और परमेश्वर से जो है वो जुड़ना है। ये जो है वो गलत नहीं है, ये खुद के सुधार के लिए जो है ये बातें सही है। पर यहाँ परमेश्वर की योजना सिर्फ यही नहीं है कि हमारे अंदर सुधार आए, तो परमेश्वर ये सुधार चाहता है हमारे अंदर कि हमारे संपूर्ण परिपूर्ण के द्वारा हम जो है वो हमारे आजू-बाजू के लोग और पूरे संसार में जो है इस सुधार को लाए। If I am doing good in the kingdom of God, or if I think I'm doing good, but I'm allowing my brother or my sister to fall, then I am just as good as my brother and sister, my friends. Please understand what I'm trying to tell you. और अगर हम जो है वो परमेश्वर में अच्छे चल रहे हैं और अगर हम
अच्छा कार्य कर रहे या अच्छे हैं, पर अगर हम जो है वो हमारे साथ चलने वाले भाई बहन अगर जब गिरते हैं या हम उन्हें नहीं संभालते हैं या उनके अंदर सुधार नहीं लाते हैं, तो हम भी वैसे ही हो जाते हैं जैसे हमारे भाई बहन है। God is going to hold us personally responsible for every time we have not assisted our brother and sister to rectify himself to the Father. He's going to hold us responsible. और ये चीज़ें जो है वो हमें एक जवाबदारी में डालती है, ये हमारी जवाबदारी है, ये हमारे सर पे ये बात आती है जब हमारे भाई-बहन जब गिरते हैं और हम जब उनके अंदर अगर कोई सुधार नहीं लाते हैं या हम उन्हें नहीं उठाते हैं, तो उसका जो दोष है, वो जो जवाबदारी है, वो हमारे सर पे है। Okay, so we're looking at a much higher level now. Yaakov is telling us a much higher level of walking with God, a much higher level than you and me understand. और हम जो है वो अभी बहुत ही ऊपरी स्तर की जो बातें जो है वो समझ रहे हैं। याकूब जो है वो बहुत ही ऊपरी स्तर की बातों को समझा रहा है। हमारी जो समझ है, हमारे स्तर की समझ से बहुत ऊपर की बातों को हम समझ रहे हैं। Okay, now read verse 25-26. और 25वां वचन और 26वां वचन कहता है, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है, वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर नहीं, पर वैसे ही काम करता है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। Why does he talk about if you think you are pure and perfect and you speak all the wrong things, then you become absolutely impure. और क्यों ये बात कही गई है कि अगर तुम पूरी तरह से खरे हो और धार्मिकता में हो, पर अगर तुम्हारी ज़बान जो है वो सही नहीं है, अगर तुम गलत तरीके से बातों को करते हो, तो तुम्हारी जो भक्ति है वो पूरी तरह से व्यर्थ है। It is because all that you speak come from your heart. It's in your heart you decide to encourage the evil inclination or the good inclination. क्योंकि हम जो कुछ भी बोलते हैं वो हमारे हृदय से आता है। पहले हम हमारे हृदय में इस बात को लाते हैं और फिर हम उस बातों को हृदय की बातों को जोड़ते हैं या तो अच्छी चीज़ों के साथ या बुरी चीज़ों के साथ। So, verse 26 says, if any man among you seem to be religious and keep not his tongue, he deceives his own heart, and this man's deeds or rituals is in vain. और इसलिए 26वां वचन कहता है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। Whatever man feels, whatever he processes in his heart comes out from his mouth. The power to speak life or death is in the power of their tongue. और जो भी मनुष्य जो है जिन बातों को जो है वो सोचता है वो उसकी हृदय से उत्पन्न होती है, और जो वो हृदय में जिन बातों को रखता है उसी बातों को वो अपने मुंह से बोलता है। और इसलिए वचन कहता है कि जीवन और मृत्यु दोनों तुम्हारे जबान में है। Now read verse 27. हमारे परमेश्वर और पिता के निकट युद्ध और निर्बल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी शुद्धि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। True avoda. I don't know what is it written in the KJV. Pari, can you tell me what's written in KJV or in your Bible, English Bible? Yes, More, I'll tell. 27. Pure religion and undefiled before God and the Father is this, to visit the fatherless and widows in their affliction and to keep himself unspotted from the world. I don't know why is the word religion written on there. Even in the Greek, it uses the word threskeia, which means ritual.
ritual that is acceptable and pure and undefiled before God. I don't know why the word religion, it's the wrong word of that. Before the Father and God is this, to visit the fatherless and widows in their affliction. That means, what is James saying? Listen very carefully. He's saying, when you know your brother and sister is in need of comfort, love, and to be rectified before the Father, that is the avodah and service you're supposed to do. You're supposed to uphold them spiritually. और यहाँ पे याकूब जो है वो ये कहता है कि जो रिवाज है वो रिवाज यही कहता है कि जब कोई विधवा जो है जब कोई विधवा या निर्बल जिसके अंदर कोई बल नहीं है या तो कोई अनाथ है और वो अगर जरूरत में है प्रेम की और अगर वो किसी प्रकार की जरूरत में है तो पहले हमें उसकी शुद्धि लेनी है और उसकी मदद करनी है. He is not talking about doing good works or charity. He's talking about spiritually uplifting those who are weak. और यहाँ पे वो उन्हें पैसों से मदद करने के लिए या कोई दान धर्म करने के लिए नहीं कह रहा है. यहाँ पे वो याकूब कह रहा है कि हमें उन लोगों को जो है वो परमेश्वर की जो स्पिरिचुअलिटी है, जो धार्मिकता है, उसमें हमें उनको उठाना है. To visit the fatherless means to give direction, to give advice, to spiritually look after, spiritually take care of those children who have no spiritual guidance, and to bring them onto the path of rectification back to God. और जो निर्बल लोग हैं जिसके पास जो है किसी प्रकार का जो है कोई ज्ञान नहीं है या तो कोई मार्गदर्शन नहीं है कि कैसे जो है उनको अपने जीवन में सुधार लाना है, ऐसे कमजोर लोगों को जो है परमेश्वर की आत्मिक रूप में कैसे चलना है और उनको उन बातों को सिखाना है कि परमेश्वर के निकट और परमेश्वर की आत्मिक रूप की बढ़ोतरी में उनको लेकर आना है. He is not talking about going and giving them money and feeding them and making them happy. He's not talking about that. He's talking about a person who has no parents or no father and no mother, and whose soul is being unrectified and is in a bad state with the impurities of this world, to take charge of that soul and bring that soul back to perfection. This is what he's talking about. और यहाँ पे याकूब जो है वो पैसे देने की या दान धर्म करने की बात नहीं कर रहा है. वो उस व्यक्ति के लिए बात कर रहा है जो अनाथ है, जिसके माँ बाप नहीं है, जो पूरी तरह से अकेला है और उसकी जो आत्मा है वो इस पूरी तरह से संसार की गलत बातों से जो जुड़ चुकी है, गलत चीजों से जो वो व्यक्ति उसकी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, उस व्यक्ति को जो है वो परमेश्वर की आत्मिक रूप में उसको बाहर लाना है, उसको बातों को परमेश्वर की बातों को सिखाना है, उसमें उसको उत्साहित करना है और उसके जो प्राण है, उसकी जो आत्मा है, फिर से परमेश्वर की ओर लेकर आना है. And the widows in their affliction. What do you mean by widows in their affliction? It means ladies who are left alone in this world with no guidance, no help, no one to spiritually cover them. They need spiritual covering so that they helped in a way that impurities do not come to the old. They need to have comfort and care. और दूसरा लिखा है विधवाओं के क्लेश में उनकी शुद्धि ले. तो विधवाओं की किस क्लेश की बात कर रहे हैं कि जो विधवा पूरी तरह से जो है वो अकेली हो गई है, जिसका इस संसार में कोई नहीं है, और वैसी विधवाओं को जो है वो परमेश्वर की धार्मिकता में लाना है, परमेश्वर के वचनों में सिखाना है, जिसके ऊपर कोई हाथ नहीं है उसको परमेश्वर के राज्य में लेकर आना है और उनको जो है वो परमेश्वर का आराम सिखाना है और उसमें आगे बढ़ाना है. God looks at you with tremendous love and affection when you show kindness and compassion to children who have no parents
and to old widows who have no one to turn to. God's love is very, very great in this, my friends. और हमें जो है वो बहुत काम है और बहुत ही ज्यादा जो है वो प्रेम दर्शाना है एक छोटे बालकों के लिए, बच्चों के लिए और विधवाओं के लिए जिनका इस संसार में कोई नहीं है। हमें जो है उनके ऊपर बहुत ही अधिक प्रेम के साथ जो है वो हमें रखना उनके ऊपर रखना है। And this is because these children who have no parents will go astray and they will lose their souls. God wants you to look after them. And the widows and those old ladies who have no one to help them in their old age, God is looking with compassionate eyes. This is the avatar. और परमेश्वर जो है वो बहुत ही दया और प्रेम भरी नजरों से हर एक अनाथों को जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है और एक विधवाओं पे जो पूरी तरह से इस संसार में अकेली है, परमेश्वर जो है वो ऐसे लोगों को बहुत ही एक दया भरी नजरों से देखता है। So we've come, this entire first chapter of James has been very, very clear to us. It's about not only the rectification of the personal self, but it's the rectification of the whole, the entire congregation, the entire body of Christ, which is going through this process of rectification, and we all have to contribute to it. और हमने याकूब का ये पहला जो चैप्टर था वो पूरी तरह से हमने इन बातों को देखा कि हमें जो है वो ना कि अपने आप में ही सिर्फ शुद्धिकरण को लाना है और ना ही अपने आप में ही सिर्फ सुधार लाना है, बल्कि हमें जो है वो पूरी सभा में, पूरे संसार में जो है वो इस शुद्धिकरण को लाना है, इस सुधार को लाना है और ये जो संसार की जो घटी है वो फिर से परमेश्वर की महिमा के लिए हमें उठाना है। And it is our choice to indulge in the good, in the Yetzer Hara or the Yetzer HaTov for the rectification of this world. It's in our choice, it's in our will to do this. और ये हमारा चुनाव है, ये हमारे ऊपर है कि हम अच्छी बातों के साथ जुड़ते हैं या बुरी बातों के साथ जो है वो जुड़े रहते हैं। ये हमारी चुनाव है कि हम कैसे जो है इस शुद्धिकरण को, इस संसार की शुद्धिकरण को एक शरीर में कैसे हम ला सकते हैं, ये चुनाव हमारा है। When we choose the Yetzer Hara or the evil inclination, life will be good for all of us. If we choose the Yetzer HaTov, we will face all the difficulties in life. और हम जो है अगर बुरी बात का अगर चुनाव करते हैं तो हमारे पास इस संसार के जो है वो सारे ही सुख रहेंगे, सारी बातों में जो है हम सुखी हो जाएंगे। पर अगर हमारा चुनाव अगर हम अच्छी बात का चुनाव करते हैं तो इस संसार की हर एक परीक्षाओं को, हर एक अभिलाषाओं को हर एक सत्ताओं को हम देखेंगे। Because with each pariksha and with each test and each temptation, each trial, God is purifying you, and He's purifying you to a better and better spiritual level together from your right till your rectification in finality. और क्योंकि हर एक परीक्षाओं में, अभिलाषाओं में और हर एक सत्ताओं में परमेश्वर जो है वो हमारे ऊपर कार्य करता है, कार्य करते रहता है और हमारे अंदर वो पूरी तरह से उस संपूर्णता को लाएगा जो सिर्फ यहाँ के लिए ही काफी नहीं है, बल्कि यहाँ इस संसार से लेकर उसके राज्य तक जो है वो हमारे अंदर जो शुद्धिकरण आएगा वो फायदेमंद होगा। But now let me jump back to verse 5, 6 and 7 and 8. Can you read verse 5 to 8 please again? Yes, yes. और हम जो है वो 5वें वचन से लेकर 8वें वचन तक फिर से एक बार देखते हैं। और वचन कहता है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगो जो बिना उल्लंघना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है।
ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दूषित है और अपनी सारी बातों में चंचल है। Be resolute in what you're asking God. If you're asking God for something that you desire, which you're deficient of, because you live in a deficient world, ask God in faith and ask Him that you will receive it and God will give it to you. और हमें जो है इस बात का जो है वो बहुत ही अच्छे से इस बात को समझनी है और जाननी और स्वीकारनी है कि हम जो है वो परमेश्वर से क्या मांग रहे हैं। और अगर हम उस बातों को मांग रहे हैं जो इस संसार के में जिस बातों की कमी है, घटी है, अगर उन बातों को अगर हमने मांगा है तो हमें विश्वास करना है कि हमने उन बातों को पा लिया है। Don't be double-minded. What does Yaakov mean by double-minded here? और यहाँ पे जो है वो हमें दो धारी सोच नहीं रखनी है, दो नाव नहीं रखनी है, दो प्रकार की सोच में नहीं रहना है। It's when I ask something with my mouth, but my heart is thinking something else. This is not acceptable to God. और दो सोच रखने का मतलब ये है कि मेरे हृदय में जो है वो कोई और बात है, पर मैं मेरी ज़बान से जो है वो कुछ और बात को माँग रही हूँ। ये जो है वो परमेश्वर के आगे परमेश्वर इन बातों को नहीं स्वीकारता। So, friends, this concludes chapter 1 of the book of James. Next week, we'll do chapter 2. But I hope you all have been blessed with both these sessions. And I urge you all to see these two sessions again and internalize what you have learned. और हमने जो है वो याकूब के पूरे पहले अध्याय को देखा है और हम चाहते हैं कि ये जो दोनों सेशन हमारे हुए, पहला और दूसरा, वो आप फिर से जो है इन बातों को जो है वो सुने और अच्छी तरह से सुनकर एक निर्णय ले कि हम जो है वो किस रीति में किस बातों से हम जुड़े हुए हैं।